सो दोस्तों, ये वाला जो पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड करा है वो बड़ा ही दिवाली सीजन स्पेशल है बिकॉज आई मेट द फाउंडर्स ऑफ निरंतर प्रयास विच इज मधु एंड अनुराधा. बाय द वे दे बोथ आर पेरेंट्स एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ निरंतर प्रयास फाउंडेशन. निरंतर प्रयास का नाम ही इतना अमेजिंग है दैट नेवर लूज होप इफ आई हैव टू सम इट अप इन अ नटशेल. एंड दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग बाय व्हाट दे आर टॉकिंग. ओके, अब इस वाले पॉडकास्ट के अंदर मेरे जो कॉन्वर्सेशन बड़े लाइट हार्टेड थे बिकॉज टिपिकली मेरे पॉडकास्ट बड़े सीरियस और बड़े इंटेंस हो जाते हैं व्हिच आई वुड से दैट पता नहीं लाइफ में क्या होगा. तो मैंने सोचा कि इस फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करते हैं. लेट मी गिव यू अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू ऑफ हाउ थिंग्स आर ऑन द अदर साइड, especially parents who are actually initiating things from their end. And by the way, इस पॉडकास्ट के अंदर आप 2-3 चीजें एक्सपीरियंस जरूर करोगे. हाउ चिल्ड्रन आर एक्चुअली ट्रेन्ड, हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू क्रिएट देयर स्किल्स, एंड ऑल्सो दे आर एबल टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, an input and an output. And these products which you find in this center, they are amazing. The only drawback with this center is, or you can say the foundation is that they have not marketed as of now. बाकी इनके products हैं, जरूर जाके शॉप करना. If you buy something, it's good karma points to your life. And at the same time, you will find that those products are being created by neurodivergent children, which means all the contributions, whatever you are going to buy in this festive season, are going to go to these neurodivergent children. And the skill set, or you can say the machines and whatever initiatives which this foundation is planning to do, उसके अंदर जाने वाला है. So better watch this entire podcast and do subscribe to my channel if you like my content. And towards the end of the podcast, you will find the entire video where, how and what the kids actually do in Nirantar Prayas. So watch this podcast till the end. And if you think my podcasts are good and they are giving value to you, do let me know in the comment section that whom should I call next in this podcast. Because my job is to create value-based content on the spectrum. Let me know in the comment section which guest you want next. And once again, I wish you all a happy Diwali and keep igniting the hope of life in your life. Take care. मुझे नाम बताओ, निरंतर प्रयास का मतलब क्या? मैं भी जिम जाता हूँ और प्रयास करता हूँ. आपका निरंतर प्रयास और मेरे प्रयास में क्या डिफरेंस है? हमारा निरंतर प्रयास का मतलब है कंप्यूटर सपोर्ट. ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग काम करते ऑटिज्म स्पेक्ट्रम लीडर के साथ, ज़्यादा हम न्यूरो डायग्नोसिस के साथ काम करते थे. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ASD. तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि एक दिन कर दिया कि नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है. ये कंटिन्यूस सपोर्ट है. ये आजकल 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का आपको नहीं है. जब तक आपको तब तक आपसे हो. निरंतर प्रयास. व्हाट इज योर मेजर व्हाई इस फाउंडेशन से जुड़ने के लिए, और आपका मेन मुद्दा क्या? मतलब मुद्दा भी क्या, मतलब मुझे दैट व्हाट इज योर मेन व्हाई एंड व्हाई हैव यू एसोसिएटेड विद मधु मैम एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम निरंतर प्रयास? क्या चाहते हो अचीव करना इसके? The only simple thing that all parents with a special needs child thinks that we need a place where my child can live a life, a respectable life with dignity and be on his own. And that is why we established Nirantar Prayas. Nirantar Prayas is a continuous effort and we aim like that, to have a dignified life of our students, of our children. So as a parent, as a teacher, I know the why that matched with the ma'am is that she umbrella everything. She covers everything, and now we are, as you have seen, that we are working, we are trying to make them independent, economically independent. Then we are also planning residential care facility. We are started off the very small stage. मैंने देखा होगा 4 बेड्स. Yes. Then we will gradually grew to a hostel, and we are also planning for a community living. So we are going phase wise. That is what we are aiming at. And the class is this one. Super. After us, some more parents, younger parents will join us, and they will continue that. So, तो मधु मैम आप बताइए, ये वाला रीज़न तो है नहीं, उन्होंने बहुत सीरियसली बता दिया. आप बताओ, मतलब आपने कैसे स्टार्ट करा, मतलब क्या था? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा यू आर एंजॉयिंग इट. निरंतर प्रयास लग नहीं रहा, मतलब निरंतर प्रयास तो मेरे को लग रहा है कि आप प्रयास करने में ना अपने मतलब क्या लगना चाहिए, क्यों किरण? हाँ, मेरे को वही तो, मैं अभी तक जितने मिल रहे हैं ना पेरेंट्स, बहुत सैड है मिल रहे हैं, इसलिए मैं उनका इंटरव्यू ले नहीं पाता हूँ. लेकिन आप बड़े हैप्पी लग, क्या है अगर सेट था कि कितना पोज है लोग को बुकी हो जाएगा. जहाँ पे कुछ मिलता है तो उसको ही करना है. अगर खुश रही मिलता को खुश, अगर भूखी और भी मिला है गुरुजी देना. हमारा कभी कुछ मिलना चाहिए, चाहे खुश हो चाहे
अगर दुखी होकर मिल लिया तो दुखी हो जाएगी, दूसरे को मिल लिया तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को भी देखा था, वो आपको देख के एक्साइटेड हुआ था, वो जाने नहीं देते हैं, वेरी पॉजिटिव पपी। अभी देखा था बाहर, पकड़ लिया था एकदम से, तो मैम ने कहा प्लीज ऐसे करके ठग लाइट चलती है सॉलिड वाली ऐसा। पता नहीं किया क्या आप पाए, वो लोग ज़्यादा देते हैं, उनके हिसाब से मैं हिंदी कम देती हूँ, मैं ज़्यादा देती हूँ, दे आर एक्साइटेड, मैंने देखा था सब। मैं ज़्यादा लेती हूँ। हाँ सही है, सब पे काम, सबको काम पे लगा। मैंने आपके तीनों फ्लोर्स देखे आज, सब में मतलब सब लगे पड़े थे, मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड वाले फ्लोर के तभी सब काम कर रहे थे, थर्ड बाय फोर्थ के अंदर भी पूरा, मतलब तेल भी निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं देखा था मस्टर्ड ऑयल। तो आई वुड से दैट यू हैव लाइक मेड इट कंप्लीट, मतलब एंटरप्राइजिंग बना के रखा हुआ है। मोदी जी के पीछे को लगता है आप मेक इन इंडिया आप ही बना रहे हो शायद आप लोग। हाँ, ये सही सही, मेरी ये अच्छा, ये अच्छा है, मैं इडियट रहा। मैं पहले वाले भी अच्छे था, पैटर्न नहीं मान रहे। तो बताइए मतलब यहाँ पे वैसे पैट बनाना चाहिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सॉरी अगर यार नहीं वो नहीं मैं वही है, इस पे लिखा कि इफ इट इज ब्रोकन देन इट इज द मायर्स रिस्पांसिबिलिटी टू, ऐसे है वह तो कुछ नहीं लिखा भाई, तो लिख दो ना फिर। लेकिन जो लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे तो ब्रेक नहीं करूँ होगा, बस पढ़ो नीचे। Made and packaged by Neuro, क्या बात है, neurodiverse individuals. The proceeds will go to financial. ये देखिए जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा जो न्यूरो डाइवर्सिटी जो बच्चे हैं काम कर रहे हैं उनमें हमारा उनका शेयर है। तो हम किसी का नाम इसलिए लेंसर नहीं किए, ये भी वो एक हम पर है, उसमें बहुत सारे बच्चे को बहुत सारा प्रोडक्ट, कोई दिया होना है, कोई तोरण बना, तो हम लोग उसको लॉकडाउन किया है, जब प्रॉफिट मिलेगा तो उसे अरे बहुत प्रॉफिटेबल जगह है ये, मेरे को तो सब कुछ खरीदने का मन कर रहा है आज का। ये पता नहीं ये इतना क्लासिक है। आपको पता है, अगर आपने जीके में बेच दिया और अगर डिफेंस को नहीं बेची, ओह दिस इज मेड बाय चूट एंड बाय न्यूरो डाइवर्स किड्स, ओह माय गॉड, ऐसे यू नो साउथ दिल्ली के लोगों ने एकदम ऐसे पागल है। वी गॉट ऑर्डर ऑफ 100। मालूम है साउथ दिल्ली का माल है, आपको मालूम है दिल्ली आर्ट का माल है। अगर आप ऐसी जगह में बेचोगे तो फिर लोग कहेंगे वाओ, तो बहुत अच्छी से पढ़ा कर मार्केटिंग कर, तो इसमें नो पड़ी चाहते इतना करना चाहिए। नहीं, बट इतना सारा माल है आपके पास, इतना सारा, कैसे आपका प्लान है, मतलब बिकॉज वो मेरे को मालूम आप बिहार से हो, तो कहाँ से हो? उड़ीसा से हो, वो तो और बड़े वाले होते हैं बिजनेस ओनर्स, मतलब उनका जो दिमाग है बहुत नेक्स्ट लेवल पे चलता है। आई मेट ऑफ, अरे मैट ना, वो इजराइल की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उड़ीसा के जो, माय गॉड, हाँ सीरियसली बिजनेस स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बस ये है कि हम एटलीस्ट हर चीज़ में सारे चीज कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। जो हमें जो इंडिविजुअल जो पैदा हुआ है, मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ चाहता है, बस ये हमारा कितना कैपेसिटी है और हम कितना वो उनके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर लेके आए, वो लेके आए। अदरवाइज आपको उनका आता है, हमने बस थोड़ा सा सीखा। वो मैं ऊपर गया था, वो बैठ के उसमें बॉटल्स को पूरा डिजाइन करा था बच्चा, और वेट भी कर रहे थे बॉटल्स को डिजाइन। तो ये वो टीम ऑल्सो विच इज वेरी गुड, और ये सबके सब बड़े मतलब बहुत मेहनती था। कैसे मैन पावर अच्छा बताओ के वाइब्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया अपना एक सीरीज थी, वह थी आई चेंज आंसर, तो मिलते हैं लोग, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड यू आर कनेक्टेड विद द स्पिरिट, जब हमारे न्यूरो डाइवर्स को आपने देखा कि मैम ने उनको कनेक्ट कर लिया, तो वो ये तो हमारा स्टाफ है, तो ये लोगों को भी वो फील आता है, इट्स हिज माइंड, दे ओ इट। मैंने वो देखा, ये अपने अपन वाली फीलिंग मैंने देखी है, वाइब बना रहे यहाँ की। ऐसा लगता है कि मेरे को बाहर रहने की जरूरत नहीं है, कॉर्पोरेट आने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब मिली है लोगों को। और इमेजिन करो नोएडा जैसी जगह के अंदर जहाँ पे बाहर ये दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ये तो है, हम लोगों को छुट्टी का था तो हमारा तो सारे फ्लोर्स के अंदर काम चल रहा है, सारे फ्लोर में काम चल रहा है, मतलब एक भी फ्लोर खाली नहीं बैठ रहा है। काश हमारा सरकार ने इसे कहा। आप आत्मनिर्भर भारत की बात आप कर रहे हो रियलिटी के अंदर, मतलब बाकी लोग सपने देखते रहते हैं कि बनाना है, लेकिन आप प्रोडक्ट बना के यहाँ पे क्रिएट कर चुके हो, एंड यू आर एक्चुअली मेकिंग इट लाइव, सेल कर रहे हैं अभी सारी चीजें, एंड हेल्पिंग द किड्स हाउ टू स्कैन इट, हाउ टू गिविंग द स्किल्स। जो कहते हैं स्किल इंडिया मूवमेंट की बातें करते रहते हैं, एक स्किल इंडिया में खुल के रखा वहाँ पे डिपार्टमेंट, लेकिन आप एक्चुअली उन्हें स्किल्स आई वुड से दैट एट अ ग्राउंड लेवल आप बहुत अच्छा स्किल सेट्स प्रोवाइड करो बच्चों को, तो बहुत सारे पेरेंट नहीं सोच पाते। सो व्हाट
I'll tell you why I'm talking about this because normally you would have बच्चों को liabilities की तरह काफ़ी कुछ पेरेंट्स देखते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी क्या हुई, ये होगी वो होगी, लेकिन एक पॉजिटिव आउटलुक बहुत कम पेरेंट्स का, हैंडफुल पेरेंट्स का। कोई क्यों क्यों दिखते? क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसा है, सोसाइटी मजबूर करता है कि आप ऐसे सोचो। आप सोचिए, एक मदर अगर लेके जा रही है एक रिटेल शॉप में लेके, ठीक है, और वो अच्छा जैसे मेन डाउन कर लिया या उसको प्रॉब्लम हो गया, तो सारे खड़े होके ऐसे देखते हैं जैसे कोई दूसरी ग्रह से कोई आया है उसको देखा। तो हेल्पिंग का मतलब ये नहीं कि आप आगे उसको पकड़ लिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या वो मदर को जाके ठीक है आप चिंता मत कीजिए, या सबकी क्वालिटी हो ना आप आर्डर से दीजिए, हम सारा सामान आपके यहाँ ले सकते हैं। उनके लिए नहा धनाई का, अगर उनके पास ओला नहीं उनकी ये या का गाड़ी भी है, एक वो पी करके मदद को रोजा बिहारिए, या उन तक सामान दिया है, अगर वो बिहीन कर चुके हैं उनका सामान पकड़ के आप कितना लोग करना है लेके उनको गाड़ी तक भेजती है कि इतना हेल्प कर दी। तो ये अवेयरनेस की नहीं है। हम कहीं पे भी जाते हैं ना, अगर पता चलता है बच्चा ऑटिस्टिक हो तो उन्होंने पहले से पूछ देते हैं, अच्छा देख लीजिए ऐसा नहीं करेगा तो ये नहीं तोड़ेगा तो ये नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा। तो वो थोड़ा सेम फील करते हैं। हाँ, इसलिए पेरेंट को मजबूर किया जाता है कि आप सोचो कि आपको गलत काम कर दिया नहीं, या आपका बच्चा है ना ये ब्रह्मांड का पराग कर दे रहा है। आप सोचिए मैं कौन मैं जहाँ परमानेंट करेगी जो मेरा दुख पहन सकते हैं या जो नहीं, तो वो क्वेश्चन वो काक सब ठीक ही करते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ को फ्रेंडशिप करेगा, जिसके आप मस्ती करोगे, मुझे आओगे, पार्टी करोगे, वो आपके घर पे आए हैं, आप उनके घर में जाओगे, तो फ्रेंडशिप होगा। अगर आपके घर में कोई आ रहा है, आपका बच्चा डिस्टर्बेंस वगैरह है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है या वो आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा है, तो क्या आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे? नहीं करेंगे ना। बस इसीलिए लोगों को लगता है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव साइड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको बुरी है जो कभी वो नहीं हेल्प किया है। बहुत सारे उनको भिमान जानते ही नहीं, मेरा बेटा तो अफसोस है, रॉबिन है, जानते हैं क्योंकि वो मेरे साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, मेरे साथ उन्होंने हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं क्या। सही है, आप चेंज कर लेते हो ना। अगेन मैं वही बताऊँ ना, यू आर एन इवॉल्व पेरेंट, है ना। अब क्योंकि पेरेंट जो इवॉल्व हो चुके हैं ना, जो कि पार कर चुके हैं, वही है जो एक अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को देख पाते हैं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन सी द किड्स एज एसेट्स एंड नॉट जस्ट वन, एवरीबडी। तभी तो आपने इतना बड़ा एक पूरा अपना इनिशिएटिव जो रन कर रहे हो, इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सो मेनी कोलैबोरेशन, सपोर्ट मिल रहा है आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, एकदम बिल्कुल सही बैठा हुआ है, जहाँ पर सारे पेरेंट्स होप छोड़ देते हैं कि इसका तो कुछ हम कर सकते हैं। हमारे जब मेजर फॉर्मेटिव ईयर्स है जहाँ पे 7 साल इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हमने पार कर लिया, थेरेपीज भी ट्राई कर लिया। मैंने पता इतने सारे सेंटर्स के मैंने इतनी सारी स्टोरीज पढ़ रखेंगे, मैं नाम बता रहा हूँ, मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, पैसा लूटा है कुछ सेंटर्स है तो, एंड देयर इज़ नो रिजल्ट। और उसके कहते थक खा के मर मुरा के फिर बाद में जाके कहते कुछ भी नहीं है। एंड जब होप खत्म होती है, आई थिंक अगेन 10 years and 12 years के टाइम में पेरेंट्स है गिव अप मार देते हैं कि अब हमको हमारे बस की नहीं है। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आपको 10 या 12 साल को पकड़ना है? मतलब ये थॉट कहाँ से है? हम खुद पेरेंट्स हैं, हमें मालूम हुआ है, तो वहीं से शिकानी शुरू होती है। जाकर पता चला भी खुद से हुई है। यूरेका मूवमेंट क्या था? मतलब आपने ये इसको जीरो डाउन कैसे करा कि हमको 10 से 12 के बच्चों को एक करके क्योंकि हमारे मैम का भी एक्सपीरियंस था कि लोग बोले बच्चा बस हाइपर है, हम इसको आगे नहीं करा सकते, इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। सिर्फ ना मेरा था कि नहीं कर सकते, अभी कहीं यहाँ फिनिश हो गया, अभी इसकी आगे यहाँ पे कुछ नहीं है और मेरे को कुछ और। तो वो जो सिचुएशन थी, वो जो हमारी क्या कहते हैं समस्या थी, उसका समाधान मतलब तो विपत्ति को संपत्ति बनाने का। और बढ़िया, वेल सेट। तो आपने जो पकड़ा कि ये 10 से 12 साल के बच्चों को ही हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड उनसे पर वाले बच्चों को पकड़ना, सो इसके अंदर वाज देयर ब्रेक थ्रूज? आपने कुछ आई एम श्योर बहुत एक्सपीरियंस कर, वुड यू लाइक टू शेयर एनी ब्रेक थ्रूज व्हिच यू हैव एक्सपीरियंस? मेरे नोएडा में मैंने है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में गई। मेरा बेटा
10 years का जस्ट और था सो इसलिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन के जाना भी नहीं का सेंटर का और मेरा बेटा सुपर टॉप बस लेवल ले रही सोचता एंड तो निको तो आता नहीं बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ही है जो वाला क्या काम किया बहुत सारा से मिला है तीनों हम लोग ने मिसेज से विक्की भी को पसंद है इसकी मैंने ही है लेकिन हाँ कहीं वो नहीं पा रहा ठीक से आदर्श नहीं करता तब जब भी वो सारा सिंपल आगे वॉलेंटियर काम किया तो मुझे रियलाइज हुआ हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो मेरा बेटा भी कर सकता है और दूसरे बच्चे इधर मॉडिफिकेशन क्या थी? मॉडिफिकेशन इन द सेंस आप ज़्यादा स्टफ जो इस करना है हम और जो उसको पसंद हो इनिशियल स्ट्रेस के जो उसको पसंद है उससे भी काम स्टार्ट कर तो पहले देखना पड़ेगा उसको क्या मजा आप पूरा इंटरेस्टिंग काम देना चाहिए उसको और ऐसा काम देना चाहिए किस पे फिनिश हो जाएगा वो दिखेगा रिजल्ट दिखती आपने किया रिजल्ट है वो मज़ा आएगा उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है सपोज आपने कुछ काम करने और उसका रिजल्ट आएगा बहुत एक घंटे बाद तो उसका तो इंटरेस्ट ही कम जाएगा इस वक्त तो इसलिए हमें इन समय कुछ जिसे प्रिंट की कुछ जेरॉक्स बनाए ठीक है बहुत सारा जेरॉक्स निकल तो वो जैसे जेरॉक्स लगा और उसको सुई गया तो जेरॉक्स आपका सेम से मदर इट्स नॉट रिजल्ट तो उसको मजा आने लगा अच्छा ये भी करी से ये आ रहा है नहीं बिगड़ में कुछ निकल के आ इस पर नहीं चाह आप एक बार तुम बिजी खुद आपने जो दिया है ना सही तो ऐसे छोटा छोटा चीज़ इंस्टेंट निजी करना चाहिए और सपोज कोई एक्टिविटी कर रहा है कोई डिफिकल्ट एक्टिविटी है सो मेरा टारगेट ये था कि पहले मैं पूरा एक्टिविटी कंप्लीट करूँ उसमें फिनिश करने के लिए 3-4 होना चाहिए कम तो उसको मैं देती अगर ये मैंने किया लेकिन मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा कैसे कर तो वो कर लेता था उसको कॉन्फिडेंस देने को अरे वाह ये नहीं कर क्या तो वो करने के बाद हमारा सेलिब्रेशन होता था ऐसे ऐसे कर दिया पापा है पापा को बता रहे थे पता है आज हम लोग ये कर लिया तो पापा को भी बहने ने कौन दिल वो देती नहीं अंदर वो आप सेलिब्रेशन मेरे ये दिखाई इंडिया की फ्लाइट बहुत अच्छा हुआ तो ये होते होते फिर ये तो इंटरेस्ट करने के तो फिर हमने सोचा कि नहीं हम ऐसे करने हैं हम हमारा एक छोटा सा की स्टाफ देखते बनवाहा मेन और हमारा सा पहुँचा करने P6 करने संके हमने सिक्की 56 में स्टार्ट है छोटा सा जहाँ पे हमारा ही नेचर का और उसके बाद कितना 2 महीना एक महीना विदिन मान लो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है हाँ जो भी वही दिक्कत है तो ही महीने में कितने 30 जी वो आगे कि वो बच्चे जानते थे हम दोनों मूवी जानते वो हमारा पास से वो जानते आज बने दी रही की चूड़ा थोड़ी बेउमी किया तो ऐसे स्टार्ट हुआ फिर हम लोग इसी टाइम में इनर फंक्शन में कन्वर्जन कर दिया नेशनल ट्रस्ट का जो CEO थी उनको हमने अभी थिकनेस भी दिखता था तो उसके बाद फिर हम लोगों को लगा बच्चे के लिए बर्तन में थोड़ा सा बड़ा एरिया बनाना चाहिए बनी को भी डालने डोसा उसके बाद हमारे भी एक पिक को ये कितना सिंपल नहीं से बता दी सो दिस इज लाइक द एंटायर मतलब मान के चलिए इस इनिशिएटिव आपने छोटा सा सोचा था एंड देन दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव क्रिएटेड अब मेरा सवाल ये है पेरेंट्स एंड बच्चों का ब्रेक थ्रू बच्चों के लाइफ के अंदर तो फॉर एग्जांपल यू मॉडरेट टू सीवियर को आप ट्रीट कर देंगे शोई एंड इन योर एक्सपीरियंस हैज इट एवर हैपेंड दैट कंपनीज आर कम टू यू एंड दे से दैट वी वुड गिव एन इंटर्नशिप टू योर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ बार गया एक बार हुआ हाँ वुड यू लाइक टू शेयर हाँ नथरी वो एक्सपोर्ट हाउस था जारंदो बाहर मुंजल गर्म का उन्होंने आई हमारे बच्चों को देखा उन्होंने अपने यहाँ डेटा एंट्री का काम हमारे बच्चों को दिया शर्ट फोल्डिंग का काम दिया पैकेजिंग करके और जो थ्रेड्स एक्स्ट्रा कर जाते हैं उनको कट करके कोई सर्वे करने का काम दिया है बट कोविड स्पॉइल कर रहा है उसका बटरीन हम गए बट हाँ उनका काफ़ी तरह उन्होंने काफ़ी तरीके दिए कंप्यूटर स्किल्स दिए बच्चों को थ्रेड्स का करने का बटनिंग एक्टिविटी सिखाने का शेल्फ फोल्ड करके पैकेजिंग करने का
तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर दिया था हमारी बच्चों को। तो मैंने बताया था ना, एक सब सीखा, मैं उसी से सिखा रहा हूँ। एक हमारा बच्चा है, ये पूरी है, तो उसको हमने KXC और मैन तो सिखाया। फिर उसके बाद ये बना। अभी तो वो कुछ भी डेटा दे दो पूरा टर्बो यहाँ की। Superb. So, do corporates come, मतलब आपने कभी एचआर को बोला कि वे आप अपने डाइवर्सिटी इनिशिएटिव से हमारे बच्चों को ट्राई करो? बिकॉज कॉर्पोरेट्स के अंदर एक अम्ब्रेला है जहाँ पे आप न्यूरोडाइवर्स की हायरिंग कर सकते हैं। Fortunately, but हमारा SGO या वसूल टू विद मॉडरेट चाहिए। क्या हो गया? तो हमको ये चाहिए कि हमारे जो शेल्टर एरिया है उसमें हमें काम मिले और हम उस बच्चे को बाकी के बच्चे के अलग एनवायरमेंट में ही काम कराएं, फिर उनको वहाँ पे ले लेके। तो आपके कंपनीज पे गिफ्टिंग कंपनीज है, you can actually type with the gifting companies. I can actually connect with you, one of the persons who is into gifting. Do you मुझे connect करवा? उनको हमको बोला है सर। डेफिनेटली काटनी है तो सुबह। Because मेरे को अब समझ आ गई, because normally companies इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, लेकिन भाई कॉर्पोरेट क्या अलग ये माहौल होता है, ये माहौल बढ़िया है, यहाँ पे अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे तो मेरे को लगता हम है टास्क एनालिसिस करके उसको चेंज में डिवाइड करके बच्चे जहाँ सपोर्टेबल है वहाँ को उसको फॉलो कराते हैं। जैसे अगर बच्चे को जैसे अभी बचाया उसको पूरा दिया प्लान करना है, तो हमने कहा ठीक है कर दी, इसको इसने जैसे कर दिया उसके बाद इसको फिनिशिंग करने का काम हम कर देते हैं। या फिर किसी बच्चे को बुक्स माइंड में काम करना चाहता है, हमने उसको फ्री क्रेडिट दिया देगी और उसको फाइन वर्क करता है। तो वी डिवाइड द टास्क इनटू चार्ट्स एंड गिव द इंटरेस्टिंग पार्ट और द एंड पार्ट दैट द चाइल्ड भी सीखे अच्छा फिनिश हो गया। मैंने बोला कि ना एकदम से फिनिश होकर रिजल्ट दिख जाए बस देखो, तो हम उसको पूरा डिटेल देने के बजाय पूरा टास्क देने के बजाय 2 कीज देते हैं जिसको करके उसको सेटिस्फैक्शन है। तो पूरा प्रदर्शन पे अभी क्यों काफी बच्चे तो सारा पूरा कर लिए मैं, वो धीरे धीरे आने में लगा। मतलब वो टाइम आने कि पहले तो स्ट्रेट लाइन स्टिचिंग सिखाया, फिर क्रॉस सिखाया, फिर अब वो पूरा डिजाइन मैन बना रहे हैं। तो आप लोगों ने, मैं एक आइडिया देता हूँ, मतलब देयर इज अ प्लेस कॉल्ड स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वहाँ के ग्रीन पार्क के पास है। तो ग्रीन पार्क के पास दे हैव ओपन स्टेशनरी, वो डेडिकेटेड स्टेशनरी है जहाँ पे आपको डायरीज, कैलेंडर्स, बॉक्सेस, टिश्यू पेपर वाले बॉक्सेस हैं। दीज आर ऑल क्रिएटेड बाय स्पास्टिक क्लीनर एंड एन डोनेशन गोज बाय द नेम आदि, AADI। हाँ आदि है, जानते हो भाई वो आदि। तो मैंने हम तो प्रोडक्ट्स देखे और हम लोग काफ़ी बड़े फ्रीक्वेंट कस्टमर्स आए, जब मौका मिलता है ग्रीन पार्क जाते हैं उठा के लेकर आया। और ऐसा कोई गिफ्ट सेट हमको यहाँ पे दिला दी, अभी करा सकते हैं। Requirements and we will do it. one is requirement and one is walk-in. Anybody can come walk it, see your samples and buy it, and then they pay the bulk orders. You have to create one show kind of a thing here. बनाओगे तो बेटर है। और उसको मतलब मैनेज करने के लिए भी वो बच्चा होगा जो कि ब्लेम विलेक कर रहा होगा, अपने इंस्पेक्टर के बच्चा हो, तब जाके मज़ा आता है। बिकॉज ना वहाँ पे ना बिलिंग करने वाले वही है बच्चे, पास्टिपर बच्चे, दे डू एवरीथिंग दैट। सो आई क्लियरली सी दिस काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज सबको पिल्ली में ही हो रहा है, नोएडा में कोई रोका नहीं है। हमारा बहुत तो क्यों रखा, क्यों मैम ऐसा क्यों, इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्यों नहीं आप मार्केटिंग क्यों करता, प्रॉब्लम है क्या हम मार्केटिंग करने के लिए? हम अपनी लाइफ का बेस्ट करते हैं, वर्ड ऑफ वर्क भी डाल रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। वो मेरे को तो हमारा मार्केटिंग नेटवर्क में हमारा कुछ एक टीम है जिसमें कुछ पेरेंट्स भी है जो हमारा साथ। जब पेरेंट्स को बोलो डेडिकेटेड लेना, नहीं वो करते हैं। ये एक मदर है बहुत जो करती है, मीडिया में करती है, और मार्केटिंग नेटवर्क में वो एक मेंबर है हमारी। प्लीज मेरे को ऐड करो। मैं उस तरह मैं ऐसा नहीं कर सकता, उस तरह मैं सुविधा कि कैसे विदा वेडिंग कर रहे और रियली सी इज बीइंग लॉट्स ऑफ वर्क फॉर अस। नहीं, देखो ऐसा है कि आई ओनली बिलीव इन मैन। यहाँ पे क्यूआर पर बैक टू बैक टिंग 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 जब तक बजेगा तब तक तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ नहीं आना स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई कर रहे हैं SBI से, हमें पता नहीं था कैसे ये सीरियसली बतावा मैं, ये दुकान बहुत चलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे सब कुछ क्रिएटिविटी एंड पीपल आर डाइंग टू फाइंड रियल रॉ क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव चीज़ें चाहिए, दीज आर वेरी कूल, दीज आर थिंग्स विच पीपल नीड। ऐसी चीज़ें चाहिए। ऐसा चलते फिरते किसी को पता भी नहीं है, फालतू में हर चीज़ में जाते हैं। यहाँ पे आ रही है। हाँ हमारे बैट की बोलते हैं, हमारे बच्चे बैट की अच्छे बनाते मैं बेडशीट के लाऊंगा। हैं। शक तो मंगाया तुम्हें, देखा मंगाया आपने, कितना पसंद है। पैसे तो बन रहे, सचमुच पैसा बन गया, बन जाए। इन लोगों को पानी में लेके मिला रहे,
हम किसी को पानी नहीं पिलाते हैं, क्यों नहीं पिलाते? कुछ नहीं करते, आप लगा दिया पानी का इधर लगा दिया और बॉटल सुना है पानी भी आधी इसको पीना ही देती है नहीं इन्होंने बोला ना हमारा मार्केटिंग करेगी तो ऐसे भी दिया तो करने दी बहुत बड़ा इंडिया अगर आगे से लूँगा तो और एक दिन ग्लास भी खिला रही और फिर ज़्यादा ब्रांड देगी। जब पहले मैं ना करता हूँ फिर आप बहुत ब्राइट। हाँ अच्छा से कुछ सेम ही कराओ। ये क्वेश्चन पूछता अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो ठीक है आप क्या करते हैं? जाने आकर की खाना भी खाने ऑर्डर करके सारे होते हैं और मूवी देख रहे होते बहुत सारी और बहुत सारे सीरियल्स का कुछ ना कुछ किसी से डिस्कस कर रहे होते। बहुत मैम वो टाइम में वेरी सोशल आया मैं वेरी किटी बंडी करती जो कितनी बार ठीक हाँ ये जुआ भी करते आप बहुत सारी किटी रखी बहुत सारे हुआ वो क्या आप सब वो पत्ते वाला गेम कार्ड वाला गेम नहीं है राम मैम हाउसी खेलते मेरे बच्चों को भी हाउसी खेला आओ यार आपको मेरे बच्चों को भी आता है। सबको सिखाते हैं अच्छा मतलब प्लीज हाउस कितना इंटरेस्टिंग है कितना मजा आता है कुछ करना नहीं पड़ता है उससे तो मतलब अरे आप ये नहीं कर रहे हो तो उसमें आप चिल मार रहे होते तो चिंता वैसे भी मार ही रहोगे ये भी करते रहो। ये तो ज़्यादा पैदा है ये भी करता नहीं तो हम लोग बेस्ट। अच्छा तो इन बात बताओ टिपिकली अभी जो नए पेरेंट्स हैं वो कि मेरा कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं वो ऐसा डायरेक्ट और थेरेपीज वेरेपीज के लिए जाते हैं सर और स्कैंडल आई पता नहीं क्या हो और मतलब एक सॉफ्ट स्टोरी भी काइंड ऑफ चल रही है वो थोड़ा सा सैड है यू हैव सम डिसीजन फॉर इट बिकॉज आप तो पार कर चुके हो निरंतर प्रयास करते करते तो यू हैव ऑलरेडी यू नो पास दैट स्टेज वेयर यू लाइक हाँ आप क्या होना है मतलब वो वाले फोन में चलेंगे आपका क्या मैसेज है उनके लिए बताओ जरा। हाँ रियल तो नहीं कि आपको काम से करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया मिस्टेक रिजल्ट आ जाएगा ऐसे नहीं होता है। हाँ लेकिन हाँ पहले जैसा नहीं है अभी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे स्कूल्स है बहुत सारा थेरेपी सेंटर है जहाँ आप अपने बच्चों बहुत सारा इंटरनेट पे ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत किया जाता है हमारे पास ये कागज नहीं थी मैं तो खुद को था ना अभी तो इसमें बहुत कुछ है ये काइंड ऑफ कंटेंट पॉडकास्ट इंफॉर्मेशन सो क्या अच्छा खासा मोटिवेट है क्या हाँ और फिर आप एक ग्रुप बना सकते हो आपने पेरेंट का ग्रुप बना सकते बट मेरे को ना एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता मैं किसी पेरेंट्स के पार्ट का बोल रही हूँ वहाँ पे अलग ही लेवल पे चल रहा है मैन आई वुड से डैट आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ सच। मैं वो क्वेश्चन पूछता था आपसे कि टिपिकली पेरेंट्स की जो चैट्स व्हाट्सअप चैट्स होंगे ना आपको व्हाट्सअप की क्या होते हैं वहाँ के चैट्स टिपिकली क्या बातें होती है वहाँ तो साहब अगर का जो उनको सेशन मतलब होता है नहीं स्पेशल नीचे का जो बातें होते हैं उनको स्पेशल मतलब बोल हाँ स्पेशल अंदर है समझता है बिल्कुल स्पेशल हम लोग इस तरह हम स्पेशल हैं क्योंकि आपको देखो हम अपने आप को स्पेशल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम थ्रू आउट चाइल्ड रह सकते हैं हमारे पास ये प्रिविलेज है कि टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड थ्रू आउट लाइफ वट एवर हमारी एज इज डजेंट मैटर हम बच्चे रह सकते हैं हमारे पास हक है इस चीज़ का हक से कौन ले लेकिन एक एज के जब बच्चे बड़े हो गए तो उसमें आपका लाइफ टूर हो जाता है। और एक चीज़ है कि जो मदर्स है ना पेरेंट्स से जो स्पेसिफिकली पेरेंट्स से हम लोग हमारा देखिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है कंपटीशन ठीक है जो रेगुलर बच्चे जो होंगे कि मेरे पिकानी बच्चे होता है तुम्हारा बच्चा कितना परसेंट होता है 90% मेरा बच्चा 90 वो बनना है अरे तू पक्का नहीं ये नहीं करता वो नहीं करता उसका बच्चा 90% 90% ये रहा है तब नहीं होगा ठीक है हम लोग खुश होते हैं नहीं बनाते हैं जहाँ कहीं कोई भी बच्चे कोई भी अचीवमेंट करता है ना सारे मदर्स खुश होते हैं अरे इसका कुछ अभी ये करना है इसका कुछ अभी इसको भी ये आता है ऐसा नहीं है हमारा हो जाता जेलेसी नहीं होती क्या पता नहीं होता आपको कुछ होती है आई एम जस्ट आस्किंग थोड़ा सा भी बच्चा किसी का थोड़ा अच्छा कर देता तो फिर उसी को मेरा सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है अगर अभी हम देखते हैं बच्चा है अगर वो गाना गा रहा है कहीं अचीव करके पहुंच गया है तो हमको लगता है हमारा बच्चा पहुंच गया अच्छा मतलब इट्स एन इंस्पिरेशन इट्स भैया वो एक है वो उसमें आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है नंबर 2 और एक चीज़ जो हमारा साथ जो एडवर्टाइज है
हम हमारा देखिए क्या होता है ना, आपका मदर हो या आपका कभी जो है जिसका, वो कभी नहीं बोलते हैं जब तक बच्चा लड़के का शादी नहीं हुआ, उससे पहले मदर कभी नहीं बोलती है कि मेरा बच्चा ना ये करता है, मेरा बच्चा बुदोनास है, मेरा बच्चा मेरी बातें सुनता है, नहीं बोलते। लेकिन हम लोग बोलते हैं, और हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग वे से बोली। मैंने मेरा बेटा को बोला, मेरा बेटा का बात नहीं सुन, तो मुझे लगता है इसका एक तो डेवलप कर गया, क्योंकि अभी तो मैंने सिखाया कि जो तुम वही करना, अगर नहीं सुन रहा है तो उसका मतलब है आए वाह इसको समझ नहीं आ रहा, दिमाग चला है पर दिमाग चल गया। ओके, तो आप उसको किस कैटेगरी में करते हो, चतुर या चालाक, किस में डाल किसको बच्चे को जब थोड़ा दिमाग हो जाता स्मार्ट आगे सा स्मार्ट स्मार्ट बनना है तो आप देख लो, मतलब मजे आते हैं सब चीज। शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि अभी म्यूजिकल चेयर पे आप देखना, मेरे बच्चों अगर जा रहे नहीं है तो पीछे खींच के बैठेंगे, चेयर हाथ ही क्या हाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग हम चीटिंग करना सिखाते हैं, वाह, मजा आता है। जल्दी से अगर मधु मैम लिखती हैं, जैसे अभी काम ने बताया हाउस ही खेल रहे हैं, मधु मैम नंबर लिखने हैं बोर्ड पे, चाहिए ये वाला नंबर है, दूसरा अपना शीट दिखा देंगे, मेरा ये नंबर बच रहा है इसको लिख दो, मैम लिख देती है, उससे कट जाता है, वो देर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को आ गई हैं कि ये दिखा दो तो मेरा नंबर लिख जाएगा, मेरा फिनिश हो जाएगा, मैं वेट कर जाऊँगा। फूड करने से कुछ मिलता है कुछ पिएगा हम आपको लूज विन का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आता है। नहीं खेलते रहेंगे, विन के पता है, वीक विन का पता है, लूज पता है, किम के। अच्छा, डिक्शनरी में ही नहीं, सितारे पे, अच्छा दे ओनली नो द कांसेप्ट ऑफ विनिंग, सितारे में भी देखिए दो है। हाँ लेकिन अच्छा हाँ उसके अंदर में जीत जाते हैं, अगर हम तो जीत गए, वो जीत, हम तो जीते हैं, टू इज गुड, दैट इज व्हाट द थिंग इज, वी लिव विद एवरी। लाश ऐसा पजल्स महात्मा क्योंकि मैं अभी पॉडकास्ट देख रहा था, उसके अंदर एक बंदा कर रहा था कि पर्सन हु इज कमिंग सेकंड, उस बंदे को ज़्यादा बुरा लगता है, थर्ड उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन सेकंड वाले को हमला बुरा लगता है। मैंने मैं क्या सेकंड तो आ गया सो भाई, सेकंड में आने में बुरा क्या लगना है, क्योंकि वही वांट्स टू बिकम द विलन। बट आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट, ये सारे से स्पून एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी ना कभी ये अथॉरिटी पेरेंट्स से पेरेंट्स को नहीं है, ये भी पेरेंट्स है, कहीं ना नहीं हम लोगों को कभी ना कभी फीलिंग आता है। मेरे बाद आज जब तक नहीं, तब तक तो हमने वर्ल्ड का सबसे केस हो रहा, हम मस्ती कर रहे हैं, हम मूवी देखी जाती, ऐसे कोई भी मूवी भी कि तेरा बेटा नहीं जाता आप यार, ये मूवी बहुत सारे अभी ने लेटेस्ट देखी अभी का जानवी कपूर का मूवी था वो परम सुंदरी, परम सुंदरी, उससे पहले ये वाला गई थी अभी जो दिल्ली LLB थ्रू आर्ट की, अच्छा अभी लेटेस्ट है वो में, तो कोई भी मूवी आया हम मूवी देख के अंदर, ठीक है, हमारा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हुई तो हाँ लेकिन ये तो मैं दर्द को लगता है कि कल अगर मुझे कुछ हो गया या हम दोनों तो मेरे हस्बैंड में हो गया ना, तो मेरे में गान ले ये है, ये पी तो मदर एज अ मम सब पे कासे You have any answer for that? या रेजिडेंट Sorry, residential. But how are you sure that residential के अंदर भी the same care which you are giving? हाँ उसमें बहुत सारे पेरेंट्स रहेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स के अच्छा, that reservation also will be run by the parents. कम्युनिटी लेवल में भी फ्लैट मिलती था वो खुद तो दैट इज व्हाट वी आर, कि हम ये निरंतर पे आपको लग रहा है हमारा है, बट हमारा नहीं है, हमारे पीछे एक पूरी लीनेज है। मैं जाऊँगी तो मेरे बाद कोई और टेक ओवर करेगा, आई डोंट ओन निरंतर क्लास, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, तो दैट इज व्हाट द प्रोसेस इज, कि हम चाहेंगे हमारे बाद कोई और आएगा, कोई और उसको रन करेगा और वो फिर वो करेगा, तभी तो कॉन्टिन्यूटी बनेगी। That's a very bold thought. In fact, मतलब इस लेवल में तो वो सोच भी नहीं पाए, बिकॉज आपका अल्टीमेट गोल इज टू मेक अ रेजिडेंशियल बेस फॉर द चिल्ड्रन वेयर दे फील That is what you said, and I am going to see this note, but this is the thought process and all I tell me to her. पता नहीं मुर्बा चाह नहीं तो होगा कोशिश तो कर रहे हैं, पता नहीं पब्बा कहने को होगा उस पर बड़े नहीं होगा। जयपुर में ना, जयपुर राजस्थान के अंदर ना जमीनें बहुत सस्ती हो गई है। अब मेरे को नहीं पता कि आपको कौन सा एरिया पसंद आ रहा है। कोई भी नहीं है हाँ, सस्ता ही नहीं, कितना एकड़ चाहिए? आज एक 5 एकड़ क्लियर है पूरा, बना के रखा पूरा?
माय गॉड Agriculture and nutrition. ओके, और उसके अंदर पूरा प्लान करेंगे क्या क्या होने वाला, क्या क्या सब कुछ सही में। वो से वो यार आज जमीन लेना है, पैसा आना है, जमीन लेना है, बनाना स्टार्ट करना है, इधर शिफ्ट होना बस। और हमारा खुद का हुआ, खुद का शॉपिंग एरिया होगा, पूरा टाइम वो बहुत सारे जो बच्चे रहेंगे वो तो करेंगे, उसके अलावा बाहर कोई डेस्क आएंगे, वो लोग भी काम करेंगे। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम सोचे हैं, तो बड़ा एरिया मिलेगा तो और भी बहुत सारा है। कारपेंटरी में काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ने हमें एक बार ट्राई किया था स्क्रू निकालना, लकड़ी में स्क्रू लगा एच, वो अच्छा से लगा ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिली था पूरा। मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें अच्छा नहीं है, ये इस पे लगा सकते हैं, कैसे हाउ डू यू वो भी एक है, एरिया बने में स्किल है। सारा नहीं कर पाता है, सारा नहीं करता है, जो हमारा पास जो रिसोर्सेस है ना उसी में एक ना गैलप की बुक है, इट्स कॉल्ड स्ट्रिक्ट फाइटर। वो कहते हैं वीकनेस से मत काम करो, सिर्फ स्ट्रिक्ट्स पे काम करो। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ वीकनेस पे काम करना सिखाता है। सॉरी टू से बट है सच्चाई है यार। इस पे पढ़ाई कर रही है एनर्जी के बोलते रहते हो, बट आई थिंक द स्टूडेंट्स और यू कैन से द चिल्ड्रन हु आर स्ट्रॉन्ग इन अ सर्टेन एरिया और अ सर्टेन स्किल और अ सर्टेन सब्जेक्ट, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते तो फिर उसके अंदर केस कर देता है व्हेन देयर इज नोबडी हु कैन कॉम्पीट इन दैट। मेरे को लगता है वो सही थॉट प्रोसेस था कि जिसमें इंटरेस्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग उसको और मैं दिखा रहा हूँ। एक बच्चा है जो कि हमसे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैम इज प्लानिंग टू हैव कि बच्चों से सब्जियां चॉप करा के फ्रिज में रखेंगे और ऑन डिमांड उसको जैसे आएगा डिमांड हम सेल करेंगे। तो वो प्रोसेस ऐसा बन जाएगा, हम वो करें कि हम दीवारी कर ये बात ये स्टार्ट करेंगे। मैम 3 स्लाइड लेके चाहिए मेरे को, बच्चे को ये करने में आ रहा है अच्छा, तो देखिए उन्होंने जाके खींचा यहाँ पे ऐसा कटा हुआ वेजिटेबल्स पूछा है, तो हम उसको प्रेफरेंस करके हम भी स्टार्ट करेंगे। दिस इज लाइक की मैसिव थिंग्स कि अच्छा बच्चे को याद है और ये अवेलेबल है, हम उसको मैच करते हैं। तो मैच करके मैं फाइनली एप्लीकेशन वाले मोड में लेकर आता हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ, बिकॉज मैं आपको मशीन बहुत सारी सारी देखी है, वो एक्चुअली में बड़े मैजिकल है। वही आपका प्रिंटेबल एग्जाम्पल है, उसी से मैच करते सबके सब, यहाँ से इनपुट करा, यहाँ से आउटपुट निकल कर आ गया। वही थॉट प्रोसेस में सारी चीज़ें देखी, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट आप और मैं बीज डाला तेल निकल के आ रहा है, हम देखा है उसको निकलते हुए, उसको के यूजुअल आ रहा है अभी। हमने रोल करा और पेपर जो था इज नॉट डिजाइन टू प्ले, तो दैट इज ऑल सेम, या थॉट प्रोसेस इज सेम।